So good morning children. Today I am going to discuss the prose third from class 9, The Little Girl. And this is written by Catherine Mansfield. Today I am going to discuss line wise the whole chapters. So please put your headphone and watch it in details line wise. The Little Girl, written by Catherine Mansfield. As it is prose, so you need to understand the whole passage about the writer, about the title, and about the main topics and theme of the story, and line wise discussion as well. So listen, I'm going to discuss it. The Little Girl by Catherine Mansfield. Catherine Mansfield, Bamfam Maori, and what Brown from New Zealand. She wrote an English mainly and fiction and short story. And she is modern writer, prominent writer. A colonial. New Zealand means the when New Zealand is under British rule. She was born and grew up in a country like India, where the colonial rulers rule the countries. And name of Catherine Mansfield revolutionized 20th century English fiction. A new trend of social and psychological aspect of human things is presented in her prose. She became worldwide reputed writer, not for historical background, but lesson in ordinary lives. That is what common people. She wrote about the life and their story of common people. At the Bay and Prelude, Mansfield most innovative and widely read books. These are the other prose written by Mansfield, but Catherine Mansfield, Bay and Prelude. इसमें व्हाट हैपन, ये फेमस होने का मेन रीज़न इसका बायोलॉजी में देखा गया कि वो कॉमन पीपल, डे टू डे डाउन ट्रोडन पीपल के बारे में लिखा, जो आज तक तो कोई राइटर इसके ऊपर नहीं दिया है. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द ऑथर कैथरीन मैन्सफील्ड, द लिटिल गर्ल. लेट्स स्टार्ट लाइन वाइज दैट थिंग. It is divided in near about 15 paras. So first paper, what happened, this story is about, let me figure out the theme. This is story about a changing relationship between father and daughter. The most what a sweet relation of this human society, not only particular geographical location or background of religion. What वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में व्हाट हैपन कि ये फादर एंड डॉटर का रिलेशन बहुत स्वीट एंड टेंडर होते हैं. बट समटाइम्स आवर रिलेशन, due to but misunderstanding or maybe sometimes wrong conception that create confusion, and what natural come out is the bitterness. See, misunderstanding से जो bitterness create हुआ, but ultimate surrendered to the sweet and tender feelings between father and daughter, that is established at the end of the story. So this is a changing relation between father and daughter. That is what the main theme of the story. So starting from the first, her father was a working man. Every day in the morning he went for work. So for the first para, what happened to the little girl? He was figure of to be feared and avoided. The very starting sentence tell about their initial relationship. उसके फादर का फिगर ऐसा है कि वो उसके इमेज डॉटर के माइंड में कि उसको डर लगते हैं, और जब जितने हो सके पॉसिबल उसको अवॉइड करना. दैट इज़ व्हाट द इमीडिएट रिलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, इस टाइप का रिलेशन प्रेजेंट किया. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस. So this is what the father, as usual, father affection for the daughter is normal as usual, to which she responded with goodbye father. Not so emotional or attachment found here. And oh, there was a glad of sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और जब उसके फादर काम में चले जाते, धीरे धीरे उसका वो कैरीज जो कार बट कैरीज में जाते उसका साउंड धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाते हैं. जब और बहुत दूर चले जाते तब उसको एक रिलीफ लगता है. कौन सा फीलिंग से? फियर, जो उसके फादर की इमेज, फियरफुल इमेज उसके माइंड में है उससे. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम.
Has not the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. And these are the main three characters here presented here in the story. The daughter, her father, and her grandmother. That is her father's mother. तो जब ये ड्यूटी से रिटर्न आते तो चाय मांगते हैं और अपना पेपर वो दिन मॉर्निंग टाइम में रीड नहीं कर पाते. सो हिज बट हर फादर had habits of reading newspaper. This is what the first para of the story where gives us a glimpse of the relation between the daughter and father. While father figure is fearful and she always wanted to avoid until the sound of the carriage taking her father away fainted. She was eagerly waited for that and she felt relieved when her father went away to his duty. That is what the first part. Next, para number 2. Let's start. Para number 2, what happened? In para number 2, we find Casey, mother would call to her. That is what her nickname, Casey. If you are a good girl, you can come down and take off father boots. Slowly, the girl would slip down the stair more slowly still across the hall and push open the drawing room door. By the time he had his spectacles on and looked at her very over them in a way that was terrifying to the little girl. अपने स्पेक्टल ढूंढते हुए ऐसे एक उसको लुक देते हैं उसके डॉटर की तरफ जो उस और डर जाता है. बट हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू threat her. But what happened? A wrong conception, or maybe with that image that already created. So here second para also give a stress to the bitter relation between father and daughter. Here you find while Casey hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? This is what as usual fatherly affection you found here. कि फादर जैसे बोलते आप अच्छे बच्चे हो ना जो ये काम जल्दी कर दो. लाइक ए familiar voice. I don't know father. That is what she did not want to be a good daughter because she did not like her father at all, and that's why उसको अच्छा होने का उम्मीद भी नहीं आता. This is what our कोई सपोज आपको कोई टीचर पसंद नहीं है और वो आपको बोले बी ए गुड स्टूडेंट तो उसका रिप्लाई इसे होता है कि मेरे को जरूरत नहीं है गुड स्टूडेंट होने. सो इस स्टेटमेंट में भी एक बिटरनेस रिफ्लेक्ट हो रहा है. शी डिड नॉट लाइक हर फादर एट ऑल. यू डोंट नो इफ़ योर शार्टर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अगर इस टाइप का अगर बिहेव करोगे तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. दैट इज वॉट अगेन ए रिफ्लेक्शन ऑफ बिटर रिलेशन बिटवीन फादर एंड डॉटर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन पैरा नंबर 2. नेक्स्ट पैरा नंबर 3. She never shuttered with other people. She had quite given it up, but only with father. Because then she was trying to so hard to say the words properly. What's the matter? Because यहाँ पर ये सटर्ड ये सेंस में कि वो जो बबलिंग कर रहा था साउंड क्लियर नहीं आ रहा था कि आउट ऑफ एफ्रेड इवन शी afraid to speak fluently in front of her father. ये सेकेंड पैरा में जो इंसिडेंट शो हुआ कि उसके पापा के पास वो क्लियरली और फ्लुएंटली बात भी नहीं कर पाते. What are you looking so wretched about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Cassie, carry me my teacup बैक टू द टेबल केयरफुली. जैसे घर में एक डॉटर रहने से वो एज यूजुअल थोड़ा सा लिटिल बिट काम करना पड़ता है. इसे ऑर्डर देते हैं फादर और उसमें और वो इरिटेट एंड वट गुस्से हो जाते हैं. ही वॉज सो बिग. हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही वांट थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट. जब भी उसके अकेला उसके फादर के बारे में सोचते हैं तो उसका जो बड़ा फिगर और जो बड़े हाथ और उसका नेक भी बड़ा है तो एक दैत्य दानव टाइप का देखने में वट इमेज क्रिएट होता है उसके फादर का ये डॉटर के माइंड में. सो एक टेरिबल इमेज ऑफ हर फादर प्रेजेंटेड हियर इन पैरा नंबर 2. शटर्ड ये सब वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर दिए हैं. दैट इज़ व्हाट हेल्पफुल. शटर्ड दैट इज़ हकलाती वट बबलिंग हो रहा है नॉट क्लियरली साउंड क्योंकि फादर का जो डर है वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ. नाउ पैरा नंबर 4 यू फाइंड हियर. पैरा नंबर 4. One Sunday afternoon, a grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl
Alois found mother's reading and father stretched out on the sofa. His handkerchief on his face, his feet on one of the best caution, sleeping soundly and snoring. So जब भी वो फादर एंड मदर के साथ बात करने जाते हैं तभी क्या एज गिवन इन द पिक्चर कि उसके फादर उस टाइप का सोफा में सोए हुए हैं स्ट्रेचिंग हैंड एंड उसके मदर सिटिंग रीडिंग. सो नो वन हैव एनी इंटेंशन टू. And this is what in reflection of lower middle class family where hard work is the only way to their livelihood. लोअर मिडिल क्लास जहाँ पर पेरेंट्स को उस चाइल्ड को टाइम देने का. एंड दिस इज व्हाट द इफ यू थिंक एनी मिस्टेक फ्रॉम द पेरेंट्स साइड इज दैट कि दे डिड नॉट गिव टाइम टू देयर चाइल्ड एंड दैट्स व्हाई चाइल्ड बिकम्स लाइक एबनॉर्मल बट बिहेवियर इस टाइप का डेवलप हुआ है फादर एंड मदर का पेरेंट्स. दिस इज व्हाट नेगेटिव साइड ऑफ द पेरेंट्स रिफ्लेक्टेड हियर एज वेल. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked time, then looked at her. वो जब नींद से उठते हैं फादर इमीडिएटली टाइम पूछते हैं और तब तक वो बैठ के देखते रहते हैं. डोंट स्टेयर सो कैजी, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल. क्योंकि वो स्टेयरली फिक्सली उसकी तरफ देखते रहते तो ऑटोमेटिकली आई ऐसे आई एक्सप्रेशन आता है जैसे आउल बड़े बड़े आँख हो जाते हैं और इसमें उसको और रिव्यू टाइप का लगता है स्कॉल्डेड टाइप का लगते हैं. वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट वीक उसका पापा का बर्थडे है एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन क्वेश्चन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. सो दिस इज व्हाट एन ऑफर एंड सजेशन एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर टू इम्प्रेस्ड हर फादर को इम्प्रेस करने का एक तरीका आए कि उसका नेक्स्ट वीक बर्थडे है. सो वो कुछ गिफ्ट उसको दे सकते हैं वो भी पिन क्वेश्चन जिसमें वो यूज़ कर सकता है वो भी पेपर से. वो दैट इज़ व्हाट ए ग्रेट आर्ट एज वेल एज टू इम्प्रेस द फादर. बट व्हाट हैपेंड दिस इंसिडेंट ऑल्सो लीड ए बिटर एक्सपीरियंस दैट वी विल फाइंड इन द नेक्स्ट पैरा नंबर 5. व्हाट हैपेंड laboriously with double cotton the little girl stitched थ्री साइड को क्वेश्चन बनाने के लिए थ्री साइड को स्टिच करना पड़ता है एंड वन साइड से कुछ बट व्हाट टू फिल इट विथ. बट वो जो क्वेश्चन बनाया लेकिन उसके अंदर क्या डालेंगे कॉटन या समथिंग यूजलेस बट ड्रेस अप और समथिंग. बट यहाँ पर वो ऐसे कुछ नहीं मिला. तो व्हाट हैपेंड दैट वाज द क्वेश्चन. द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. कुछ टूटा फटा सामान जिसको उसमें डाले और क्वेश्चन बने. On the bed table she discovered a great many sheet of fine पेपर कागज़ का बहुत सारा शीट बेड शीट में मिला. तो सोचा ये सब दे के वो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे. Gathered them up, tore them into tiny pieces, छोटे छोटे पीस में उसको फाड़े and stuffed her case, then swayed up the fourth side. उसके अंदर डाल के भर के swayed up फिर से उसको स्टिच कर दिया फोर्थ साइड जो बाकी था एंड क्वेश्चन बन गया. That night there was a hue and cry in the house. बट उस रात में उस घर में बहुत हल्ला हुआ. hue and cry का जो एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पर दिया एंग्री प्रोटेस्ट और झगड़ा है. hue and cry दिखाओ. फादर ग्रेट स्पीच फॉर द port authority had been lost. Rooms were searched, servant questioned. Finally, mother came into Casey's room. Casey, I suppose you did not see some paper on a table in out room. तो उस सब पेपर कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स था जिसमें वो क्वेश्चन बनाया और उसको फादर पोर्ट अथॉरिटी आज मंगाया एंड देन कहीं पर जब नहीं मिला तब उसकी मदर आके पूछी थी बेड का ऊपर जो था वो कहाँ गया. ओ यस शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज गिफ्ट बनाने के लिए मैं उसको पाट दिया हूँ. व्हाट स्क्रीम्ड मदर, जोर से चिल्लाया उसका मामा. क्या? कम स्ट्रेट व्हाट. तो दैट इज व्हाट है मदर कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. तुरंत अभी नीचे आ जाओ डाइनिंग रूम में है डाइनिंग रूम में एंड इन दिस इंस्टेंट क्योंकि दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम्स विथ हर फादर्स वर्क. एंड नेक्स्ट पैरा नंबर 6. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज pacing to and fro hands behind his back. While he said sharply, mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? This is an angry command by the father. Did you do that? आप इसे किए हो.
No, she again, no, she again, she whispered, that is bubbling, unable to utter the sound. Mother go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child put to his bed instant. तुरंत तो उसके मदर गए उस रूम में और उसको लेके आया. कौन सा थिंग्स, जो थिंग्स वो खराब किए ना, इंस्टेंट लेके आए. एंड नेक्स्ट पैरा नंबर 7, तो उसको तुरंत लेके आए मदर, वो जो कार्शन बनाया जिसमें वो पेपर को फाड़ के. एंड क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट. उसको रूम में रख दिया. मेक ए लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, एंड वो एक पैटर्न बनाया फ्लोर में. देन फादर केम इन टू द रूम विथ रूलर इन हिज हैंड. एक बड़ा सा डंडा लेके फादर आया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पेपर को फाड़ दिया. दैट इज़ व्हाट आई एंग्री फादर. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. मैं आपको पीटने वाला हूँ. Oh no, she screamed, hiding under the bedclothes. Bedclothes का नीचे एज लिटिल चाइल्ड जैसे करते छुप गए. He pulled them aside, सबको अलग कर दिया, उसको ऊपर से हटा दिया बेड क्लॉथ को. Sit up, वो बैठने के लिए ऑर्डर दिए फादर. एंड ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. सामने को एक्सटेंड योर हैंड, जैसे एज यूजुअल पीटने के टाइम टीचर बोलते थे वंस अपॉन अ टाइम है. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो उसको फादर ये बोला कि आपको एक लेसन सिखाना है कि जो आपका नहीं है वो सब थिंग्स को टच नहीं करना है. तो दिस इज़ व्हाट ए फादरली command as well as a teaching from the parents to not to touch. This is good lesson, but the way of teaching is something I thought कि absurd है कि beating है beating, but it was for your बर्थडे. बट मैं ये जो किया हूँ ये आपका बर्थडे के लिए. बट दैट इज़ व्हाट शी वॉज बाबलिंग. से डर में बात भी ठीक से नहीं कर रहा हूँ. कम डाउन द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. धीरे उसका ऊपर वो रूलर का डंडा पड़ा. एंड दैट इज़ व्हाट पैरा नंबर 7 को उसको पनिशमेंट. एंड दिस पनिशमेंट अगेन टोटली ब्रिंग हर बैक टू दैट अफ्रेड. एंड जो थ्रेड और फियर था वो और स्ट्रॉन्ग बना दिया. दैट इज नाउ पैरा नंबर 8. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in rocking chair, the child clung to her soft body. उसको एक शॉल में ढके और रॉकिंग चेयर में बैठाया तो सॉफ्ट बॉडी धीरे धीरे मूव होना स्टार्ट. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी शॉप्ड. रोते रोते बताया कि भगवान पापा को क्यों बनाया. दैट इज़ व्हाट ए चाइल्डली क्वेश्चंस. She was unable to understand the cruel reaction of her father. Here is a clean sky. Here is a clean hanky darling. Blow your nose. हैंकी दिया क्योंकि नाक से बट पानी भी निकल जाते रोते रोते बच्चे के टाइम. एज यूजुअल यू फाउंड इट. देन गो टू स्लीप pet, you will forgot all about in the morning. I tried to explain to father. I tried to explain the father about, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. वो कभी नहीं भूल पाया वो इंसिडेंट. एक तो डरते थे ऊपर से ये पीटना, इसमें और डर उसको डीप रूटेड फियर क्रिएट कर दिया. नेक्स्ट टाइम she saw him, she quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks. और डर में अभी उसको जब भी उसके फादर को देखते थे उसका चीख लाल हो जाता है. चीख गाल लाल हो जाता था. दैट इज़ व्हाट नेचुरल फियर अफ्रेड और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया. नेक्स्ट पैरा नंबर 9. द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर. एक फ्रेंड है, उसके फ्रेंड जो नेक्स्ट डोर में रहते हैं. मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर. दे हैड 5 चिल्ड्रेन. फ्रेंड का फैमिली मैकडोनल्ड. 5 children looking through a gap in the fence. The little girl saw them playing tag in the evening. देख रहे हैं कि उस 5 बच्चे के साथ कैसे उन लोग खेल रहे हैं और अपना जो फेंस से बाउंड्री का जो लकड़ी से बना हुआ एक वट दीवार टाइप का जिस का होल से देख रहे हैं खेल रहा है. द फादर विद द बेबी. सब चिल्ड्रेन के साथ. मैव ऑन हिज सोल्जर्स. 2 little girl hanging on his coat pocket and ran round and round the flower bed shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him. एक बार देखा बच्चे उसको कोई जेब में घूम रहा है कोई बट कंधे में एज गिवन इन द पिक्चर हियर. दिस टाइप ऑफ दे आर प्लेइंग द नेवर एंड दिस इमेज अगेन upset her. Then it was she decided there were different sort of father. Suddenly one day mother became ill. और इसी इंसिडेंट के बाद एक दिन क्या हुआ उसकी मम्मी को बुखार हो गया. एंड शी एंड grandmother went to hospital. दोनों हॉस्पिटल गया. The little girl was left alone in the house with Alice the cook.
कि वो जो खाना बनाने वाला घर में था एलिश, उसके साथ वो घर में अकेला था क्योंकि ग्रैंड मदर भी उसके फादर के साथ हॉस्पिटल गए थे। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, बट वाइल एलिश वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। बट जब उसको रात हुआ, जब कोई घर में नहीं था, वो अकेले थे, तब उसको और ज़्यादा डर लगना स्टार्ट किए। एंड देन शी मिस्ड द व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ, एंड देन शी फेल्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ फादर। What will I do if I have a nightmare? She asked. अगर रात में डरावना कुछ सपना आया तो मैं क्या करूँ? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. Granny है grandmother, उसको अपना बेड. I cannot stay in dark. It all gets whispery. जब ऐसे अंधेरा होता है तो जब कोई छुप छुप से बात करते थे, इस टाइप का सुनाई देता. So she afraid night. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her sock, and don't you scream and wake your poor pa. अब पापा सो रहे हैं दूसरे रूम में, तो आप उसको डिस्टर्ब मत करो, आप सो जाओ, क्योंकि ग्रैंड मदर और उन लोग हॉस्पिटल में हैं और फादर हैं। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, बट रात में वही वाला डरावना सपना उसको फिर बार। द बुचर विथ नाइफ एंड रोप, एक नाइफ और रोप लेके आ रहे हैं। हु केम नियर एंड नियर स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल, डरावना स्माइल लेके एक बुचर जो काटने कीचे बट चिकन या मटन जो काटते हैं उसको बुचर बोलते हैं, तो वो नाइफ लेके आ रहा है। दैट इज़ व्हाट हर ड्रीम, और ये ड्रीम में और ज़्यादा डर गया ना। वाइल शी कुड नॉट मूव, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. जब वो डर में ग्रैंडमा ग्रैंडमा करके नींद से उठा तो देखा उसके फादर साइड में एक कैंडल लेके हैं, और वो पूछा क्या हुआ। दैट इज़ व्हाट द ओनली पर्सन हु टेकिंग केयर ऑफ हर, दैट इज़ हर फादर, ऑफ व्हेन शी हैड दैट बेड नाइटमेयर। That now para number 11, what happened? Oh, a butcher, a knife, I want granny. मैं grandmother चाहिए, मैं अकेला नहीं सुता। He blew out the candle, bent down, सिर्फ कैंडल को बुझा दिया, और caught up the child in his arm, अपना आर्म से लिया बच्चे को, carrying her along the passage to the big room, bedroom की तरफ अपने डॉटर को लेके आया। A newspaper on the bed, a half smoked cigar was नियर हिज रीडिंग लैम्प, एक न्यूज़पेपर भी था, सिगरेट भी था। ही पुट अवे द पेपर, थ्रू द सिगर इनटू द फायर प्लेस, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड को अपने पास में टक्ड अप सुलाए। तो दैट इज़ व्हाट टक्ड अप, पुट अप कंफर्टेबली ना, आराम से उसको रखे सुलाने बच्चे को। एंड द चाइल्ड ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके साइड में, अपने डॉटर के साइड में उसके फादर भी सुआ। दैट इज़ व्हाट दैट इज़ व्हाट द फादर अफेक्शन फॉर द डॉटर एज इज वेल। देर इज़ नो व्हाट क्रुएल्टी बिहाइंड व्हाट शी थॉट, हाफ स्लीप स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर। It seemed she crept close to him, snuggled her bear in with under his arm, held tightly to his shirt. And then the dark did not matter, she lay still. उसके फादर का शर्ट को पकड़ के आराम से सो गया, और अभी अंधेरे डर नहीं लग रहा। He rub your feet against my legs and get them warm, his said father. ठंडे लग रहा है तो पैर को घिसो, ठंडा हाथ और पैर घिसने से ठंडे में एक्चुअली बॉडी वार्म अप हो जाता है, ठंडी कम लगता है। तो ये फादर सजेस्ट किया, दैट इज़ यू कैन रब योर हैंड लेग हियर with his feet, and this is how a fatherly feelings, and this first time she felt the relax and the affection of her father. And next para number 12, that is what the last para. Tired out, she slept before the little girl. A funny feeling came over her. एक अजब तरीका का फीलिंग्स आया फादर के पास सोने। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, उतना डरावक जाइंट टाइप का जो इमेज था उतना डरावक है नहीं पापा। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कोई उसको देखने वाला है नहीं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, क्योंकि उसका पापा भी सो गया, टायर्ड है, उतना मेहनत करते हैं ना, एंड दैट्स वाई उसको टाइम नहीं मिलता अपने डॉटर को टाइम देने। ये जो मिस्टेक्स है, ये थिंग समटाइम्स हम लोग स्किप कर देते हैं, बट अभी इस टाइम फील किए उसके डॉटर कि दिस इज़ नॉट द रॉन्ग पर्सन, दिस इज़ द रियल फादर हु हैड affection, care, love for the daughter. Now too tired to be, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was
टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। जो पड़ोसिन वाला फादर देखा था उस टाइप का वो सोचता कि मेरे फादर क्यों नहीं होता है पड़ोसिन वाला, बट ये उसको समझ में नहीं आता कि उसके फादर बहुत वर्क करते हैं और उसमें इतना टायर्ड हो जाता कि वो सब फादरली फीलिंग शो करने का टाइम नहीं मिलता। सी had torn up all his beautiful writing. She is tired suddenly and sighed. सो सडनली एक्साइटेड हो गया और जोर से सांस, एक रिलीफ का सांस आया। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। तब उसके फादर पूछा क्या हुआ, दूसरा कोई सपना आ गया क्या? ओ सेड द लिटिल गाय, माई हैड्स ऑन योर हार्ट। मेरा सर अपना दिल में, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर टीयर। जब उसके फादर का हार्ट बीट सुनाई दिया तब देखा कि उसके फादर का हार्ट भी बहुत बड़ा है। एंड दिट इज़ व्हाट ए फादरली अफेक्शन एंड हियर द स्टोरी एंडेड। What we find here is that a father always a father. Maybe sometimes they are busy with their work, they did not get time to give, they did not have time to show up their love, but they really love us. And this is what the mistakes, misunderstanding of the daughter that create a really wrong image. A loving and affectionate father turns to be a giant, दैत्य टाइप का इमेज था जो उस दिन वो नाइट में फादर के साथ रहने के बाद वो फीलिंग्स आया। दैट इज़ नॉट द, बट एवरी फादर इज़ ए मैकडोनल्ड फादर। जो नेबर वाला स्विफ्ट एंड प्लेफुल एंड लविंग फादर वो देखा था, वो उसका फादर भी है, बट सी बट अनएबल टू अंडरस्टैंड the tired and difficult is her father facing, and that's why a misunderstanding. And here the story ended. What we find here is a twofold discussion, a moving relationship. At the beginning of the story you find what at the beginning of the story you found here is a bitter relationship between father and daughter, and finally it's turned out to be a great relationship of a daughter and a father. And I will to understand the real meaning of the father, the great heart of our father. And here the story ended. If you have any doubt you can ask in my personal number as well. So thank you.